अयोध्या में भी बहुत काम हो रहे हैं। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जो हमारे देश की राजधानी रही हस्तिनापुर, जो मेरठ जिले में पड़ती है और गंगा को पार करते हैं तो विदुर कुटी जो बिजनौर में पड़ती है और मुजफ्फरनगर में जाते हैं तो सुकरताल, क्या ऐसे हाईवे के जालों से उनको भी जोड़ने का कोई प्रोग्राम है? बहुत पतली पतली रोड है, बहुत दिक्कतें होती हैं, तो मंत्री से जानना चाहता हूं। सम्मानीय स्पीकर महोदय, हम दिल्ली के बाजू में एनसीआर में 65,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि दिल्ली से मेरठ 4 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट 50 मिनट में लोग आ रहे हैं। उसके बाद मुजफ्फरनगर के रोड का भी काम पूरा हुआ है देहरादून तक, और सहारनपुर से विशेष रूप से अक्षरधाम से लेकर देहरादून तक हम नया हाईवे बना रहे हैं और केवल 2 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार इससे होगा। जहां तक इन्होंने ये जो बात की है हस्तिनापुर की, मेरठ के पास की, वो नेशनल हाईवे नहीं है, वो स्टेट हाईवे है। फिर भी उस क्षेत्र में अगर नेशनल हाईवे कहीं होगा, नंबर प्राप्त होगा, तो प्रपोजल मेरे पास लेके आइए, उसमें हम जरूर काम करेंगे। पर हम स्टेट हाईवे पे काम नहीं कर सकते। दिल्ली एनसीआर में काफी जगह काम हो रहा है, दिल्ली का पेरिफेरल रोड बना है। अब विशेष रूप से पानीपत से निकलने के बाद UR2 जो DDA बनाने की जिम्मेदारी थी वो हमने बनाया, जिससे 2 घंटे पानीपत के वहां से एयरपोर्ट जाने लगते थे, 20 मिनट में आएंगे। और शिव मूर्ति के पास हमने टनल बनाई है डायरेक्ट T3 जाने के लिए, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने के लिए। तो दिल्ली में जो आजू बाजू में एनसीआर में है, वहाँ NHAI की जहाँ जहाँ जिम्मेदारी है वो पूरा काम किया है। यहाँ अगर कोई NHAI का होगा तो मुझे प्रस्ताव दीजिए, जरूर काम करेंगे। इन 2021 the number of road accident is 4,12,432 and in 2022 it is 4,61,312 accidents, that is 12% rise. Number of deaths, actually 2021 it was 1,53,972 and presently it comes to 1,68,491. The 10% is increase, and I am very sorry, unfortunately it is not a good success story of my department that we are trying our level best from last 9 years, but we are not in position to reduce the accidents and death. Basically, the express highway is axis control, and the speed in the express highway is more than 100 kilometers, 120 kilometers. Now with the service road, there is a problem because already we are facing very crucial problem related with the road accident, which already you elaborated. Presently, unfortunately, in 2021, the number of road accident is 4,12,432 and in 2022 it is 4,61,312 accidents, that is 12% rise. Number of deaths, actually 2021 it was 1,53,972 and presently it comes to 1,68,491. The 10% is increase. Now the problem is that when we make the express highway, there are huge people demanding for increase in the speed, because some of the people driving on Delhi-Mumbai express highway with the speed of 140 kilometer, 160 kilometer, and they are asking me that we should relax the law related with the speed. At the same time, there is a demand. Some of the people are telling me you reduce the speed, and that is the reason the accidents are increasing. Now the problem is that at the same time, if we can connect service road, then again it will be a problem. But by considering the convenience of the people, and when you are presenting this problem to me, I will again check it, verify it, and I will try to find out the way out. But one thing is absolutely correct, where I need cooperation from all the stakeholders related with road accident. It is very unfortunate. It is a loss of GDP of 3.14%, and the most unfortunate thing is 67% deaths belong to 18 to 45 years. The young people now, they are facing this problem, and I am very sorry. Unfortunately, it is not a good success story of my department that we are trying our level best from last 9 years, but we are not in position to reduce the accidents and death, where we say a problem of human behavior. They have to obey the law, lane discipline, driving license, don't talk on the mobile phone at the time of driving. These are the small things. खाटू श्याम जी में
माननीय अध्यक्ष जी, हर साल लाखों की संख्या में, पिछली बार तो 50 लाख की संख्या गई। वो सड़क इतनी छोटी है कि उसमें दिक्कत आती है। तो मैंने माननीय मंत्री से निवेदन किया था कि एक रिंग रोड यदि बन जाए तो वो खाटू और जीर्ण माता दोनों को कवर कर लेगी। उसका निवेदन था। तीसरा मेरा ये था कि सीकर बाईपास, उसके ऊपर अभी वो केवल 2 लेन ही रोड है और बहुत बड़ा उस पर एक्सीडेंट्स होते हैं, उसको 4 लेन करने का मेरा निवेदन आपसे था। मैं जानना चाहूंगा कि इस पर क्या आपने कार्रवाई की है और कब तक ये काम हो जाएगा। धन्यवाद। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, आज का जो प्रश्न है वो उससे काफी अलग कर ये प्रश्न पूछा गया है, पर मैं बताना चाहूंगा कि जयपुर से सीकर तक जो बात उन्होंने कही है उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताने के बारे में कहा और जल्दी रिपोर्ट तैयार होने के बाद वो काम शुरू करेंगे। ये बात सच है कि मैं उनके साथ दर्शन के लिए जब वहाँ गया था तो जो रिंग रोड बनाने की बात उन्होंने की है वो बिल्कुल सही है। वहाँ 50 लाख लोग आते हैं और 2 लेन प्लो शोल्डर रोड से काफ़ी तकलीफें होती है। मैं उनकी दूसरी बात को भी पॉजिटिवली रिजॉल्व करने के लिए सूचना दूंगा और उसका भी मार्ग निकाल कर काम करके दूंगा, ये विश्वास दिलाऊंगा।